Hello students, this is a class for BA Part 2nd English Literature. We will be studying a poem by Thomas Gray. The title of the poem is Elegy Written in a Country Churchyard. I am Dr. Anil Dadhij. Thomas Gray is considered to be a pre-romantic poet or a precursor to romantic poet, and he wrote this poem after the death of his fellow poet and friend Richard West in 1742. At the time of writing this poem, he was living in Stockpogis. Stockpogis is a village near St. Giles Parish Church, and it is wonderful to note, it is remarkable to note that he started this poem to write in 1742 and completed in 1750. That is to say, he almost took 8 years to complete this poem. And this poem was first published in 1751. So, this is the history or the background about this poem. And this poem is best known, most read, and most loved poem in English literature. It is also claimed that it is translated in almost all the leading languages of the world. If we talk about an elegy, elegy generally depicts lamentation over the death of someone who is your near or dear, on whose death you generally write a poem, sad poem. However, this poem embodies a meditation on death in general, wherein the narrator finds comfort in pondering or meditating over the lives of the obscure rustics or the rural people whom nobody know, who are buried in country churchyard, and the poet shows his sympathetic concern for them in an unprecedented way. No one has written about common, simple people who had nothing to do in an extraordinary way, but still the poet feels sympathy and he expresses their usefulness also in this poem. Thomas Gray was actually a great English poet. He was a classical scholar and professor of history at Pembroke College, Cambridge University. This poem consists 29 stanzas. It's a very long poem, and every stanza is of 4 lines. And the poem ultimately is concluded with an epitaph written for himself. Epitaph is actually the tombstone where something is written about the dead person. So, in this poem, the poet has written an epitaph for himself, and it consists 3 stanzas. Let us read the poem. The poem is a very long one. We will do the first part of the poem today. Elegy written in a country churchyard. So you all know that this is the churchyard of Stockpogis village. The poet is sitting in the country churchyard where there are graves, and he is in a melancholic mood, in a pensive mood, in a thoughtful mood, and he writes this poem from this place. We suppose the curfew tolls the knell of parting day. Curfew is actually the evening bells that the church plays at the time of evening prayers. So
कर्फ्यू मतलब शाम की आरती के समय जो घंटियाँ बजती है वो। टोल का मतलब भी वही, बजना। एक्चुअली टोल word is used for the bells that are being played at the time of death, when the dead body is carried in a coffin towards the churchyard. So the curfew tolls the knell. Knell is actually the bell that is being played. It's the bell that plays at the time of someone's death. So curfew tolls the knell of parting day. Who is dying here? The day is dying here. The day is parting. Parting means coming to an end. So the day which is coming to an end, uska knell, उसकी डेथ बेल इज बीइंग टोल्ड, बजाई जा रही है। किस रूप में बजाई जा रही है? इन द फॉर्म ऑफ द कर्फ्यू, जो चर्च की इवनिंग बेल है उसके रूप में। तो द फर्स्ट साउंड दैट यू हियर इज द साउंड ऑफ कर्फ्यू। लोइंग हर्ड, लोइंग कहते हैं रंभाने को, गायों के रंभाने को। हर्ड का मतलब कैटल, झुंड गायों का। तो द लोइंग हर्ड, द कैटल दैट इज लाउडली लोइंग, रंभा रहे हैं। वाइंड स्लोली मतलब टर्न स्लोली ओवर द ली मतलब मीडोज। दे आर कमिंग बैक टू होम्स, they are entering in the village. So you have to notice the progression of time. इधर से कर्फ्यू बजता है चर्च में, उधर से गायों का गांव में प्रवेश होता है। द cows start entering into the village and they are lowing. So second sound that you hear in the village is that of the cattle that enters in the village slowly. Why they come slowly? अब देखिए एक एक शब्द important है. It is remarkable to notice every word. Slowly, why? Because they have been eating belly full in the meadows in daytime. So दे आर मूविंग स्लोली, पेट भरा हुआ है इसलिए धीरे चल रही हैं गायें। द प्लोमैन, और उनके पीछे पीछे कौन है? प्लोमैन। अब देखिए पीजेंट भी लिख सकता था ऑथर, लेकिन ही राइट्स प्लोमैन। वाई? बिकॉज ही वांट्स टू गिव यू ए पिक्चर ऑफ द पीजेंट कैरिंग द प्लो। हल लिए हुए हलधर किसान आपको दिखाता है वो। तो द वर्ड, एवरी वर्ड इज चोजन, एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट। The plowman plods. Plod means walk heavily. किधर घूम चल रहा है? He is walking heavily, क्योंकि थक गया है इसलिए। He plods homeward towards his home. कैसे? His weary way. So this word as a literary device, जिसको हम बोलते हैं transferred epithet. Actually it is the plowman, it is the peasant who is weary. Weary means tired. So the plowman is tired, but यहाँ पे का क्या कहा गया है? His weary way, जैसे रास्ता थका हो। थका आदमी है, रास्ता नहीं है। तो ट्रांसफ़र हो गया है एपिथेट। एपिथेट कहते हैं एडजेक्टिव। तो the peasant is moving heavily because he is tired and he is moving towards his home and leaves the world to darkness. और उसके बाद आप देखिए गाय के आने का टाइम जो होता है उसको जनरली वी कॉल ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट मतलब गोधूली वेला। तो गायों के खुर से जो धूल आसमान में उड़ती है, द डस्ट दैट राइजेज अप इन द इवनिंग when they enter in the village, और इसके साथ ही कैसी इवनिंग डार्कनेस की तरफ बढ़ती है। that leaves the world to darkness. When the plowman also comes in the village, enters in the village after the cattle, तो he leaves the world to darkness and to me, दुनिया को अंधेरे में, और फिर मुझे भी। कहने का मतलब क्या है? ये जो शब्द है अपने लिए उसने टू मी को एंड के साथ जोड़ा। इसका मतलब क्या है? ही फाइंड्स हिमसेल्फ
आइसोलेटेड और एलिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, अपने आप को दुनिया से अलग पाता है. वाई? बिकॉज ही इज सिटिंग इन द country churchyard. So, in this first opening stanza, we hear two sounds. One is that of curfew, the other is that of cattle. And then the plowman enters, and after that, the progression of time is important to note. वो अंधेरा शुरू हो जाता है. Now fades the glimmering landscape on the sight. Now look at the landscape. Landscape मतलब whatever you see before your eyes. जो कुछ आप देखते हो लैंडस्केप में वो. और वो लैंडस्केप अभी तक कैसा है? ग्लिमरिंग. ग्लिमरिंग मतलब शाइनिंग इन ए डल मैनर. ग्लिमर इज एक्चुअली ऑपोजिट टू ग्लिटर. ग्लिटर मतलब चकाचौंध करने वाली, डेजलिंग लाइट. एंड ऑपोजिट इज ग्लिमरिंग लैंडस्केप बिकॉज इट इज़ द इवनिंग टाइम एंड इट इज़ नॉट डेजलिंग, इट इज़ ग्लिमरिंग. तो नाउ द ग्लिमरिंग लैंडस्केप फेड्स ऑन द साइट. अब वो फेड हो गया मतलब इट इज़ नो मोर विजिबल. ऑल द एयर ए सोलोमन स्टिलनेस होल्ड्स. और उसके बाद एयर में क्या आ गई है? इट होल्ड्स ए सोलोमन स्टिलनेस. स्टिलनेस मतलब पीस, शांति बिल्कुल. और सोलोमन मतलब ऑफ ए वेरी सीरियस काइंड, because the poet is sitting in the chapel, in the churchyard. So all the air holds a solemn kind of, a very serious kind of stillness or peace. कहाँ कहाँ है ये शांति? उसके लिए वो कहता है सेव. सेव मतलब एक्सेप्ट. सेव मीन्स एक्सेप्ट भी होता है, सिवाय उसके. कहाँ? सिवाय वहाँ जहाँ. वेयर सेव, वेयर द बीटल. शांति है सब जगह सिवाय उस जगह के जहाँ द बीटल. बीटल इज एन इंसेक्ट. बीटल व्हील्स, गोल गोल घूम रहा है. ही इज ड्रोनिंग फ्लाइट. उड़ रहा है, फ्लाइट उसके बीटल के उड़ने को. एंड इज ड्रोनिंग. ड्रोनिंग इज एक्चुअली द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीटल. तो बीटल का साउंड जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, झिंगुर की झाएँ झाएँ जहाँ है, उसके अलावा सब जगह शांति. और कहाँ पे? एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स. फोल्ड्स द प्लेस वेयर द कैटल इज पुट. गायें जहाँ पे, भेड़ें जहाँ पे रखी जाती हैं, उस बाड़े को फोल्ड बोलते हैं. डिस्टेंट मतलब फार अवे, दूर कहीं. और टिंकलिंग मतलब टिंग 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 की आवाज़. जो गले में घंटी है वो जब अपनी गर्दन इधर से उधर मोड़ते हैं तो वो घंटी टिंग बोलती है. दैट इज़ टिंकलिंग साउंड. और वो टिंकलिंग साउंड कब है? ड्राउजी. व्हेन द एनिमल्स आर ड्राउजी. ड्राउजी कहते हैं उनींदे. व्हेन दे आर ऑलमोस्ट स्लीपी. तो ड्राउजी टिंगलिंग्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स. लल मतलब जैसे लोरी सुनाते हो वैसे. मतलब in a way the poet wants to give you an atmosphere where everywhere there is peace, calm, except when the drowsy animals move their head. And because the movement of their head, the bells that are hanging in their necks, they produce a sound, tinkling sound. उसके अलावा सब जगह शांति है. और कहाँ शांति नहीं है वो बताता है. एक्सेप्ट. सेव मीन्स एक्सेप्ट. दैट फ्रॉम यॉन्डर. यॉन्डर मीन्स देयर या दैट. तो फ्रॉम दैट आईवी मेंटल्ड टॉवर. ही इंडिकेट्स टुवर्ड्स ए टॉवर. टॉवर इज एक्चुअली ए थिन बट वेरी हाई बिल्डिंग. एक टॉवर जैसा, जैसे घंटा घर होता है उस तरह का सा बिल्डिंग. तो आईवी मेंटल्ड. और इस टॉवर के चारों तरफ आईवी. आईवी इज एक्चुअली एक क्रीपर. एक बेल होती है और उस बेल ने उसको मेंटल किया हुआ है. मेंटल मतलब आवरण करना, ढकना. तो आईवी मेंटल टॉवर वहाँ से. और उस टॉवर में कौन रहता है? द मोपिंग आउल. आउल मतलब उल्लू. उल्लू कैसा है? मोपिंग. मोपिंग शब्द इज इम्पोर्टेंट. मोपिंग मीन्स
वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ लोनलीनेस, जो अकेला रहना पसंद करता है। तो आउल इज ए क्रीचर हु वांट्स टू लिव अलोन। तो द मोपिंग आउल डज कंप्लेन टू द मून, वो जैसे कंप्लेन कर रहा हो किसको, टू द मून। मून इज कंसिडर्ड टू बी द क्वीन ऑफ नाइट, क्वीन डायना। तो वो उसको जैसे कंप्लेन कर रहा हो, किसकी कंप्लेन कर रहा है, ऑफ सच, मतलब ऑफ सच पीपल एज वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बावर। बावर मीन्स कुंज या उसका चैम्बर, वो जगह जो उसने सीक्रेटली बना रखी है। कहाँ पे, इन द आईवी मेंटल टॉवर। उस जगह के नज़दीक अगर कोई आता है, कोई पासरबाई आता है, कोई पीजेंट आता है या कोई भी आता है, तो उसकी कंप्लेन में एनी वन हु इज़ वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बावर, उसकी कंप्लेंट करता है। क्यों, क्योंकि सच पर्सन मोलेस्ट, मोलेस्ट मतलब इंटरफियर या यू कैन से उसकी टेरिटरी में वो अतिक्रमण करता है, मोलेस्ट करता है। हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, उसका अकेले का एक छत्र राज है, रेन मतलब राज है, उसको वो मोलेस्ट कर रहा है, उसको एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है, उस टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसकी जो स्क्रीचिंग साउंड है, किसकी, आउल की, उसके अलावा सब जगह शांति है। इन ए वे वी कम टू नो कि इट इज़ ऑल क्वाइट पीसफुल एक्सेप्ट द बीटल्स वॉइस, एक्सेप्ट द आउल्स वॉइस, और एक्सेप्ट द ड्राउजी टिंकलिंग्स ऑफ द फोल्ड्स। अब आगे चलते हैं। बीनीथ दोज रगेड एल्म्स, एल्म्स ट्री का नाम है, एक पेड़ होता है पर्टिकुलर जो चर्च यार्ड में जनरली बन उगाए जाते हैं। तो रगेड, रगेड मीन्स रफ। बीनीथ दोज रगेड रफ एल्म ट्रीज एंड बीनीथ दोज यो ट्रीज शेड, एक और पेड़ है यो ट्री, तो उस पेड़ की शेड में, उसकी छाया में, वेयर द टर्फ हीव्स, टर्फ कहते हैं ग्रास को, हीव्स मतलब हिल रही है। कैसे, इन मैनी ए माउल्डरिंग हीप, माउल्डरिंग हीप, माउल्डरिंग मतलब शेप, किसकी, हीप, हीप मतलब ऐसी ऊंचा सा एक ढेर जो होता है। एक्चुअली ही वांट्स टू इंडिकेट टू द ग्रेव्स विच आर पुट इन ए माउल्डरिंग हीप। तो ऐसी एक पर्टिकुलर शेप जिसको दी गई है, ऐसी कब्र के ऊपर टर्फ उग गई है, घास उग गई है, वो खिल रही है उन पेड़ों के नीचे। और ऐसे में इन माउल्डरिंग हीप्स में, ये ऊपर उठी हुई जो मिट्टी का ढेर है या ऊंचा उठा हुआ जो है कब्र का स्थान, उस पे ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेलमेट स्लीप। द रूड फोर फादर्स, फोर फादर मतलब जो आपके बुजुर्ग जो होते हैं उनके लिए फोर फादर्स यूज़ करते हैं, योर फादर्स फादर्स। और वो कैसे हैं, रूड, रूड का मतलब यहाँ पे अनसिविलाइज्ड अपन बोल सकते हैं। और अनसिविलाइज्ड का मतलब बिकॉज दे लिव्ड इन ए रूरल एरिया, देयर फॉर दे डिड नॉट लर्न द सोफिस्टिकेटेड वेज ऑफ सिटी लाइफ, इसलिए दे आर रूड। मतलब ऐसे लोग जो सिंपल हैं। रूड का मतलब यहाँ पे अभद्र नहीं, रूड का मतलब यहाँ पे ऐसे लोग जिन्होंने शहरों की वो जो सोफिस्टिकेटेड लाइफ है उसको नहीं सीखा, यानी जो सिंपल हैं। रूड का यहाँ पे सिंपल मतलब है सरल लोग, गांव के सरल सिंपल फोर फादर्स हु वर अवे फ्रॉम द सोफिस्टिकेटेड लाइफ ऑफ सिटीज़। ऐसे रूड फोर फादर्स ऑफ द हेलमेट, हेमलेट, हेमलेट मतलब विलेज, छोटे गांव के लिए यूज़ किया जाता है हेमलेट। इट इज़ नॉट हेलमेट, जो सर पे लगाया जाता है वो हेलमेट होता है, इट इज़ हेमलेट। तो द रूड फॉर द फोर फादर्स ऑफ दिस विलेज स्लीप, कहाँ सो रहे हैं ये लोग, ईच इन हिज नैरो सेल, सेल कहते हैं प्रिजन को, सेल कहते हैं अंडरग्राउंड रूम को। तो ये जो नैरो सेल है, बहुत छोटी सी
6x6 की छोटी सी सेल जिसको कब्र कहते हैं अपन, और इसमें वो लेटा दिए गए हैं, ईच इन हिज नैरो सेल। कैसे लेड हैं? दे आर लेड फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, लेड फॉर एवर, ऐसे वो लोग सो रहे हैं। तो वी विल डू अप टू दिस, टुमारो वी विल मूव फॉरवर्ड। आज हमने ये देखा कि द पोएट टॉक्स अबाउट द आउटवर्ड एटमॉस्फियर, and then he talks about the rustic forefathers who are dead and who are buried in the graves. Thank you.